guys. Hope all of you are doing good. I'm very happy to see and I'm very happy to read your response because all of you are taking response and having interest in learning new things. Because this is my purpose to make you well and better in speaking communication skill, because without communication skill you will not be able to get what you want. Okay, so first of all you have to consider, you have to concentrate on your communication skill, because in 21st century the most powerful man, the most powerful thing in 21st century is a salesman. You know what, if you have power, if you have ability to sell anything, then you are the powerful man. Okay, and if you want to be a salesman, if you want to be a personal good power, if you want to have and conquer good power, good position in society and in this world, so you have to make, you have to consider, you have to increase the fluency and communication level, because if you have good communication level you can win everything. So that's why, because I have knowledge about grammar, I can speak well, I can write well, I can do everything. But the purpose is that to give more and valuable things to you to learn. Because what I faced, I will not allow you to face this type of problem, those type of problem what I faced. Because being a Bihari, I know how much difficulties I faced when I was studying, when I was learning, when I was trying to speak English. Hesitation, first of all, hesitation. I didn't have knowledge at the time of, you know what, 12th exam. I don't 11th exam, when I enter into 11th standard, I did not know this is how to use, this is that is. But now you can see me here. How can I speak English? How can I make you understand? How can I make you feel better in English? Okay, so if you want to be have global knowledge, you have to consider and you have to concentrate on English as well. Communication doesn't matter, you are speaking Bengali, you are speaking Hindi, you are Bangla, anything, Bhojpuri, Mathili, I respect every subject, but second language is English. If you want to have more knowledge about global, then you have to consider, you have to concentrate, you have to go through these words. So this is my perception, this is my ideas to you. So what you want, it's up to you. So now, volunteer, volunteer, इसी से बना हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटियर, ठीक है. सो वॉलंटियर, वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा भी होता है, ठीक है. वॉलंटरी, TARY लगा देते, वॉलंटरी मतलब इच्छा. वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक जो स्वयं का सहायता करता है, उसे वॉलंटियर कहते हैं. अब बहुत बड़ी बड़ी पार्टी में आप RSS से ज्वाइन हो गए, चाहे क्या कहते हैं, किसी भी संगठन से आप ज्वाइन होंगे, तो आपको वॉलंटियर कहा जाएगा, क्योंकि आप किसी हेल्प करते हैं, आप सहायता करते हैं, तो वॉलंटियर बोला जाता है, ठीक है. वल वल वल्गेरियन, वल्गेरियन, वल्गर, वल्गर क्या बोलते हैं, वल्गर, वल्गर, GAVULGARIN. वल्गर का मतलब होता है गंदा, असभ्य. वल्गेरियन का मतलब होता है असभ्य. यू आर अ वल्गेरियन पर्सन, आप एक असभ्य व्यक्ति हो, वल्गेरियन. ओके, उसके बाद है वेटर. वेटर आप किसको बोलते हैं, होटल में जो आपको ऑर्डर, आपका ऑर्डर ले पास करने आता है, आपको पैसा आपका ऑर्डर लेके आता है, उसे वेटर कहते हैं. वेटर का मतलब वेट शब्द से बना हुआ है, वेट, WAT, वेट. वेट मतलब इंतजार करना, ER मतलब इंतजार करने वाला. आप जब किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे वेटर इंतजार करता है ना, तो उसी को वेटर कहते हैं, ठीक है. वेटर जो इंतजार करता है उसे वेटर कहते हैं, ठीक है. आपका इंतजार वो करता है, क्योंकि आपके वजह से उसका पेट चलता है, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर यू, because you are the only responsible for his livelihood, and you will, if you not, if you don't go there, he will not eat and he will not earn his livelihood. Okay,
सो बेटर। ओके बात, वेलफेयर, बिल हम अभी भी बोल दिए ना, मिस्टेक कैसे हो जाते हैं। वेलफेयर होता है, वेलफेयर, फेयर का मतलब होता है सही, फेयर का नहीं सॉरी, फेयर का मतलब होता है एक प्रकार से भाड़ा जो चुकाना पड़ता है। हम आपको सहायता किए तो आप मुझे उसके बदले क्या देते हैं, ठीक है। फेयर का मतलब होता है आप किसी गाड़ी से जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, किराया क्या है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं फेयर। हाउ मच फेयर फॉर गोइंग टू पटना, हाउ मच फेयर फॉर गोइंग टू दिल्ली। सो कितना भाड़ा है। और वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा, दोनों वेल और फेयर, वेल और फेयर, वेल का मतलब अच्छा, फेयर का मतलब चुकाना, जो अच्छा से चुकाता हो, जो वेल अच्छा करता हो, फेयर मतलब चुकाता हो। वेलफेयर मतलब कल्याण ना होता है, पहले हम अच्छा करेंगे, अच्छा लेंगे डिसीजन, उसके बाद आपको कुछ देंगे तब ना कल्याण होगा आपका, है। तो वेलफेयर, वेल मतलब अच्छा, फेयर मतलब जो चुकाता है, वेलफेयर मतलब कल्याण। अब ना एवरीवन, इफ आई एम अ सोशलिस्ट, इफ आई एम वर्किंग इन अ सोशल यू नो सोशल सॉरी yeah, I'm a social man because I want to help society. So welfare, I will work for the welfare of our society, है ना। अब मैं अपने क्या कहते हैं, सोसाइटी के, समाज के कल्याण के लिए वर्क करूंगा। कि every government says that he will work and it will work for the society, for the welfare of our country. So अब मेरे अपलीमेंट, वेलफेयर, कल्याण के लिए, ठीक है। उसके बाद है फेयरवेल। क्या होता है फेयरवेल, फेयर देखिए, फेयरवेल एक वेलफेयर होता है, एक फेयरवेल होता है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है फेयर और वेल। फेयर मतलब चुकाना, अच्छी तरह से चुकाता है। अगर कोई आपने अच्छा काम किया, आपको अच्छी तरह से आपने काम किया, आपका चुकाना जो होता है, आप जो करते हैं, जो आपका भाड़ा अच्छी तरह से हुआ, विदाई नहीं हुआ। अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, अगर रिटायर होते हैं, चाहे कहीं जाते हैं, छोड़ते हैं, तो आपका फेयरवेल होता है ना। फेयरवेल पार्टी आप जानते हैं कॉलेज में होता है, जब मास्टर टीचर रिटायर होते हैं, चाहे बच्चा आप अपने कॉलेज छोड़ के जाता है, तो फेयरवेल विदाई पार्टी होती है ना, तो फेयरवेल होता है, ठीक है। फेयरवेल विदाई। वॉरियर, देखो वॉरियर बोलते हैं, वॉरियर होता है क्या, वॉरियर, WARRIOR, वॉरियर मतलब योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा जो युद्ध करता है। हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज सोसाइटी, फॉर हिज किंग, फॉर हिज फैमिली, दैट इज कॉल्ड वॉरियर, हु फाइट्स। ओके। जिगजैग, आप जानते हैं जिगजैग क्या होता है। आप गाड़ी चलाते कभी कभी ऐसे चलाते हैं, कभी ऐसे चलाते, कभी कभी ना किए हाथ ऐसे किए ना, जिगजैग है ना, टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, वैसे ऐसे। जिगजैग, नदी जिगजैग कंडीशन में होती है, इधर इधर इधर, रोड भी जिगजैग कंडीशन में होता है, आप गाड़ी ऐसे चलाते टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। क्या जिगजैग। वो होता है कंकर, कंकर का मतलब होता है ग्रैब करना, पाना, अचीव करना, कंकरर, CONQUER, कंकर मतलब होता है पाना, OR मतलब पाने वाला। अगर कंकर जो विजेता, जो अचीव कर लेता है, व्हाट यू वांट यू विन, वन डे यू विल अचीव, इफ यू हैव परसिवियरेंस, if you have confidence, if you are hard working, if you are doing work hard, then you will डेफिनेटली यू विल अचीव। सो उसी को कंकरर कहते हैं, जो अचीव करता है उसे विजेता कहते हैं, जो जीतने वाला होता है उसे विजेता कहते हैं। उसके बाद होता है पर्सोनल। क्या होता है पर्सोनल, पर्सोनल एक पर्सन होता है, यहाँ तक आप कर दो तो पर्सन व्यक्ति, NEL लगा दिए तो क्या होता है कर्मचारी, जो काम करता है, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी हो, पर्सोनल उसे कहा जाता है, या सर्वेंट भी कहा जाता है, एम्प्लॉय भी कहा जाता है, ठीक है। वर्कर भी कहा जाता है, लेबर भी कहा जाता है, लेबरर भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है पर्सोनल, ठीक है। उसके बाद है बिगनर, BIGINNER, बिगनर। क्या कहते हैं बिगनर, इफ यू आर बिगनर इन द बिगनिंग, bigger in the process of learning English, in the process of speaking English, you have to start from beginning, because all of you are beginner. Some of you have most knowledge, some of you have more knowledge than I have, but some of you are lacking. Okay, so beginner मतलब स्टार्टिंग, नव सिखिया, क्या बोलते हैं नव सिखिया। सो
आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ये थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा बोल दिए इधर उधर की बात। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, share and subscribe. Thank you.